Welcome one and all to CFI India. Thank you for joining with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end, subscribe and like to our channel. Hope you'll be blessed by the word. Also do pray for our ministry. Praise the Lord and Shalom. Shalom. Okay, now we are going to look at what God's word says to us today. और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। How many of us believe that we are truly living in the last days? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं? Yeah. And you can follow the slides that I have put up over there. और जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ उसको आप देखें। Now, what I'll be doing today is talking to you from Israel, Christian life, our lives, and what we can get out of what we're looking at. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इज़राइल के जीवन से, मसीह जीवन से, हमारे जीवन से कि हम क्या कर रहे हैं। And the times that we live in, how we are to respond to that. और जिस दिनों में हम रह रहे हैं उसको कैसे प्रतिक्रिया या प्रतिसाद देना है। Because when most Christians talk about last days, the only picture that we have in our mind is this, the rapture. जब कई मसीह अंतिम दिनों की बात करते हैं तो हमारे जहन में, मन में केवल ये चित्र आता है। I remember many years back, this must have been around 97 or 98, we had gone to Mumbai. 97, 99 के 98 की बात है जब हम मुंबई में रहते थे। And I was walking in Four Bungalows Market and my mother and we were together. और चार बंगले के यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ से मैं मेरी मम्मी के साथ जा रहा था। And after a few minutes I noticed she was not there. और कुछ मिनटों के बाद मैंने देखा कि मेरी मम्मी वहाँ पर नहीं I है। looked all over the place, I couldn't find her. और मैं सब जगह पे उसे ढूंढ रहा था पर वो मुझे मिली I नहीं। stopped right in the middle of the road with all the cars coming and going. और मैं उस रास्ते के बीच में खड़ा हो गया जहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ आ जा कर You रही know थी। Four Bungalows Market, how Yes, busy yes, it is. हाँ। And I said, Lord, I'm ready. The rapture's happened. I'm waiting. और ये जिस जगह की बात कर रहे हैं वो इतनी भीड़ भाड़ की जगह है और उस मेन रास्ते पे वो खड़े हैं और कह रहे प्रभु अब ये रैप्चर होने वाला है, अब उठाए लिए जाने का समय है। I thought in the first batch my mother's gone and I'm waiting for the second batch. और मुझे लगा कि पहले बैच में मम्मी को परमेश्वर ने उठा लिया है और मैं वहां पर सेकंड बैच के लिए इंतजार कर रहा It's हूँ। been 28 years and I'm still waiting. और अब 28 साल हो गए, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ रैप्चर का, उठाए जाने का। But you know, that's the way many of us look at the last days. और यही होता है कि हम में से कई लोग हैं अंतिम दिनों को इसी प्रकार से हम देख रहे We're हैं। obsessed by the rapture. और हम ये जो रैप्चर है, अंतिम दिनों की बात है, ये जहन में हमारे पकड़े हुए है। And another thing we're obsessed with, who is the Antichrist? और जो बात हमारे मन में जो पकड़ी हुई वो है कि एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधक कौन है? Is it Putin? क्या वो पुतिन है? Is it Elon Musk? क्या एलन मस्क है? Is it the Pope? क्या फिर पोप एंटी क्राइस्ट है? Or maybe it's the president of Iran? क्या फिर ईरान का जो राष्ट्रपति है वो एंटी क्राइस्ट? Somebody else said it's King Charles. We're just obsessed by this. कई लोगों ने तो बोला है कि किंग चार्ल्स एंटी क्राइस्ट है और इन्हीं बातों में हम उलझे हुए हैं। So we come up with lot of theories, you know, about the last days. और इसलिए अंतिम दिनों के बारे में कई सारी थ्योरीज है, कई सारी कहानियां हैं, हम सुन चुके We हैं। won't go into it. Somebody's amillennial, somebody's postmillennial, somebody's predispensational. There are too many theories around it. और कई सारी इसके ऊपर शिक्षाएं हैं, वचन है जो कहते हैं कि 1000 साल का जो प्रभु का राज्य उसके पहले रैप्चर होगा या 1000 साल निकलने के बाद होगा, इसमें हम घुसेंगे नहीं। I feel the base of this is that without trying to understand Israel, we're trying to understand the book of Revelation. और इस विषय का जो संदर्भ या आधार ये है कि इज़राइल को जाने बगैर हम नए नियम के रैप्चर को समझने की कोशिश करना And we're चाहते हैं। disconnected from Revelation because we don't understand Israel. और हम इज़राइल को समझते नहीं, इसलिए जो नया नियम का प्रकाशन है उससे हमारा कुछ नाता ही नहीं बन And पा then रहा है। we develop a mindset which is replacement in its approach. और जब हम हमारे जीवन में एक बदलाव की मानसिकता इसके बारे में जब लाते हैं, And what replacement mindset basically says और ये बदलाव की मानसिकता हमें क्या कहती है, is that सिखाती in the है New Testament, Israel is gone
and the church is the new Israel. और ये बदलाव की मानसिकता क्या कहती है कि नए नियम में इजराइल को कोई महत्व नहीं है, इजराइल चला गया है, और नए नियम में हम जो मसीह लोग हैं उसको ज्यादा अहमियत दी गई है। And we have to identify that behavior in ourselves or in our community. और इस प्रकार का जो व्यवहार है उसे हमारे अंदर और हमारे कलीसिया के अंदर हमें देखना है कैसे So है। let me give you an example. अब मुझे आपको उदाहरण देने दीजिए। When the LA fires were going on, Los Angeles fires were going on, at the same time Israel was at war with Hamas. जब लॉस एंजलिस में एक आग भड़की थी उसी समय इजराइल का हमास के साथ युद्ध चल रहा था। You'd find probably every church in India praying for Los Angeles, but nobody praying for Israel. और उस समय लॉस एंजलिस के लिए सारे लोग भारत में प्रार्थना कर रहे थे, पर इजराइल के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। And again, I'm generalizing. It doesn't mean everyone, but it means generally. और मैं आपको सामान्य तौर पर ये कह रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति ऐसे कर रहा था, पर मैं आपको सामान्य तौर पर ये बात बता I रहा mean हूँ। we as a community. मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समुदाय होने के नाते Then we end up saying that the Old Testament blessings are ours. और फिर हम ये जो बदलाव की मानसिकता है उसके बदौलत या वो ज़हन में रखकर हम क्या कहते हैं कि अब ये जो पुराने नियम के आशीष जो है वो केवल अभी चर्च के लिए है, Because we are the new Israel. क्योंकि अभी हम नए इजराइल बन गए So हैं। we end up spiritualizing everything in the Old Testament. इसलिए हम पुराने नियम में जितना भी इजराइल के बारे में लिखा है उसको केवल आत्मिक तौर पर ही देख रहे As हैं। an example, जैसे कि उदाहरण के तौर पर David killed Goliath. So today we are the Davids and we kill all the spiritual Goliaths in our lives. जैसे कि बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने गलियात को मारा, तो आज हम इस कहानी को कैसे लेते हैं कि हम आत्मिक गलियात है और हम शैतान की सारी बातों को नष्ट कर रहे हैं। We forget that little Goliath defeated little David defeated big Goliath in 12 days in the Iran and Israel war. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईरान और इजराइल वॉर के बीच में ये जो छोटा दाऊद है उसने एक महाकाय गलियात का वध किया। Iran is 80 times bigger than Israel. 80 times. क्योंकि ईरान जो है 82 बार Israel से 80 बार इजराइल से बड़ा है क्षेत्रफल में। Okay? We also say that now what do we do with the curses since the blessings are ours, right? और जब हम कहते हैं कि आशीष हमारी है, तो शापों के बारे में हम क्या सोचते हैं, उसका क्या करते हैं? Curses are broken on the cross. हाँ, हम कहते हैं कि जो शाप है वो सूली पर तोड़े गए हैं, So they belong to Israel. तो वो शाप किसके है? इजराइल के है। The blessings are ours, the curses are theirs. हाँ, फिर हमारी मानसिकता क्या है? आशीष हमारी है और शाप इजराइल के Why? है। Because they are the killers of Yeshua, Jesus. क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को मारा। We go on. फिर और भी हमारी मानसिकता क्या है बदलाव? Israel deserves all the punishment. कि इजराइल को सजा मिलनी ही चाहिए, योग्य है वो। We're disconnected from the systems of the Bible because we feel that everything in the old is only has a historical importance. तो इसका कनेक्शन कहां पर है? ये पुराने नियम के संदर्भ में है कि जो भी पुराना है वो पुराने नियम के साथ है, It's only historical in nature. और ये केवल वास्तविक रूप में केवल एक इतिहास है। Because on the cross, Jesus broke it all. He took away the law on the cross. क्योंकि सूली पर जब प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया तब उसने सारे जो विधि नियम है उसको भी तोड़ दिया। So let me give you another example. एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं। We're okay to celebrate Valentine Day in the church. हाँ, कलीसिया में वैलेंटाइन डे मनाना हमें चलता है, No problem. कोई बात नहीं। We're okay to even celebrate American Thanksgiving, although it has nothing to do with us. हाँ, जो अमेरिका में धन्यवाद का दिन मनाते हैं वो हम भारत में मनाते हैं, पर बल्कि हमारा कुछ नाता ही नहीं उसके साथ। But we're not okay to celebrate the Feast of Trumpets in the church because, it was broken on the cross. पर हम कलीसिया में जो ट्रम्पेट को क्या बोलेंगे, तुतारी तो जय का जय घोष और तुतारी का जो त्योहार है जो पुराने नियम में दिया है वो हम मनाते नहीं।
You see, I'm trying to tell you that we need to identify that replacement mindset. मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो विपर्यास की जो मानसिकता है, ये समझने के लिए। The land of Israel is no longer important. Why? Because now we have a spiritual promised land. अब इज़राइल का जो जमीन है, ये हमारे लिए बहुत अहम नहीं बन गई है। क्यों? क्योंकि अभी हम आत्मिक जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। But let me ask you a question now. पर एक सवाल मुझे आपको पूछने दीजिए। When we see that Israel's back in the land, जब हम इज़राइल को फिर से अपने देश में वो आए हैं, ये देखते हैं, what do we say then? फिर हमें क्या कहना चाहिए? क्या कहते Are हैं? they spiritually back or are they physically back? क्या वो शारीरिक तौर पर वापस उनकी वापसी हुई है या आत्मिक तौर पर उनकी वापसी हुई है? So our view of the last days gets altered because our view of the Bible is not correct. क्योंकि ये आखिरी दिनों का जो अंतिम समय की जो हमारी जो समझते हैं, ये थोड़ा बिगड़ गया है, विकृति उसमें आई है, क्योंकि हम हमारे पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह से So now let's look at who is Israel. Let's see what the Bible says. तो आइए हम पवित्र शास्त्र क्या कहता है इज़राइल के बारे में, कि इज़राइल कौन है। I'll give you a few titles that God calls Israel in the Bible. और मैं कुछ शीर्षक आपको देना चाहता हूं जिस पर परमेश्वर क्या कहता है कि इज़राइल कौन है। Exodus 4:22, God says, Israel is my son, my firstborn son. निर्गमन 4:22 में परमेश्वर क्या कहता है कि इज़राइल मेरा पहलौठा पुत्र है। All parents here, please put up your hands. जितने भी यहाँ पे माता पिता अपने हाथों को उठाए। All of your children are all saints, is it? Your children is a saint? Your children are saints? क्या आपके बच्चे संत है? क्या उन्होंने कोई गलती की है? Whether they do wrong or they do right, are they still your children or not? तो मुझे बताइए कि जब हमारे बच्चे गलतियां करे या ना करे, फिर भी वो हमारे बच्चे होते हैं या नहीं? होते, right? But we want to decide that God's son is no longer his son. We want to decide that. पर अब हमें ये निर्णय लेना है कि परमेश्वर का पुत्र अब उसका पुत्र नहीं है। Exodus 19 verse 6. और निर्गमन 19:6 में लिखा है, God says to Israel, you are a kingdom of priests. परमेश्वर इज़राइल को क्या बुलाता है कि आप याजकों का राज्य हो। Deuteronomy 7 verse 6. God says you are a holy people. व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तुम पवित्र लोग हो। In Isaiah 44 and verse 1, God says, Israel, whom I have chosen. और यशाया 44:1 में क्या कहता है परमेश्वर इज़राइल को कि मैंने तुमको चुना है। In Isaiah 41 and verse 8, God says, Israel, you are my servant. और यहोशुआ 41:8 में परमेश्वर क्या कहता है इज़राइल को कि इज़राइल तुम मेरे सेवक हो। And in Isaiah 54 verse 5, God says, your maker Israel is your husband. Israel, you are my wife. और यशाया 56:5 में परमेश्वर इज़राइल को किस नाम से संबोधता है? वो कहता है कि इज़राइल तुम मेरी दुल्हन हो, पत्नी हो। Son, firstborn son. पहले कहता है परमेश्वर कि तुम मेरा पहलौठा पुत्र हो। Priest of God. फिर कहता है कि तुम याजकों का राज्य हो। Holy people. फिर तुम पवित्र लोग हो। Chosen of the Lord. फिर तुम चुने हुए, परमेश्वर के लिए चुने हुए हो। Servant of the Lord. कि तुम यहोवा के सेवक हो। Wife of the Lord. और तुम यहोवा के दुल्हन हो। This is Israel. यह है इज़राइल का वर्णन। Now in the New Testament, you say, no, Pastor, we are all believers, we are all wife of God, we're children of God, servant of God, priest of God, we are all the same. और नए नियम में हम क्या कहते हैं कि नहीं पास्टर जी, हम नए नियम में परमेश्वर की पत्नी है, परमेश्वर के चुने हुए हैं, याजक है, और हम जो उनके बारे में बोला है बोलते हैं हम अब नए नियम के लोग, हम वो है। Of course, we're still engaged. Okay, don't forget that. The marriage happens when he comes back. हाँ, ये ध्यान रहे कि हमारी मंगनी प्रभु के साथ हुई है, पर अभी शादी होना बाकी है। That's the only difference. वही एक संदर्भ है। But look at it this way. पर इसको इस प्रकार से देखते हैं। The same titles to Israel and the same titles to the Gentile believer. तो वही शीर्षक इज़राइल को दिया गया है, जो इस शीर्षक जो गैर यहूदियों को भी दिया गया है। Right, the गैर यहूदी who believes through Jesus. और वो जो गैर यहूदी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Think about it. सोचिए इसके बारे में। That means we इसका are one मतलब family. कि हम सब एक परिवार है। One family, Israel and the church, we're one family. इसका मतलब इज़राइल और कलीसिया एक परिवार है। Firstborn son and the other son.
पहलौठा पुत्र और दूसरा पुत्र, The natural son and the adopted son, all one family now. कि हमारा खुद का और एक लिया हुआ पुत्र, दत्तक लिया हुआ, हम सब एक है। You know, as believers, we hear it very often that our position is that we are joint heirs with Christ. Is that right? एक विश्वासी होने के नाते हमारा ये विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह में नया वारसा हमारा है, We're sitting in heavenly places with the Lord. और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठे हुए We हैं, are ruling over principalities and powers. और हम सारे अधिकार और सारे नियमों पर हम चलाते हैं, उस पर अधिकार This करते is हैं। what we keep saying, and it is correct. और यही हम कलीसिया बोलते रहते हैं, और ये सही भी है। But let me tell you one thing that we don't say enough. पर मुझे वो आपको बताने दीजिए जो हम ज्यादा बोलते नहीं, Who am I in Christ? कि यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। Paul tells us who we are. और पौलुस हमें कहता है कि हम कौन In हैं। Romans 11 verse 17, he says, you, a wild olive, are grafted in to the natural olive tree of Israel. और रोमियो 11 और 17 में पौलुस क्या कहता है, और तू तो एक जंगली जैतून की टहनी है, उस पर पेबंद चढ़ा दिया जाए और वह जैतून के अच्छे पेड़ की जड़ों की शक्ति का हिस्सा बटने। Anyone who knows a family that has adopted a child understands that that child now becomes a full-fledged member of the family that's adopted them. आपको पता है ऐसी कोई परिवार की जो परिवार किसी को दत्तक लेता है और गोद लेता है, और गोद लेने के बाद में वो उनका खुद का बच्चा बन जाता है। And Paul is saying exactly that. He says there is a natural olive tree which is Israel through Abraham, and now the believer through Jesus Christ has got grafted in with that natural tree. और यही पौलुस कहता है कि असल में जो इज़राइल जो है ये जैतून का पेड़ है, और हम जो मसीह है वो उस एक टहनी है, कलम किया हुआ टहनी है। So remember this as you go home. और जब आप घर जाते हो इस बात को आप ध्यान में रखें, My position in Christ is I am grafted in with Israel. मेरी प्रभु यीशु मसीह में स्थिति क्या है, तो मैं कलम किया हुआ जोड़ा गया हूँ टहनी के साथ। Now many believers who are favorable towards Israel stumble on one point, that why have many Jews not yet received Yeshua as the Messiah? अब कई मसीह लोग ऐसे हैं कि जो इज़राइल लोगों को सपोर्ट करते हैं, पर उनके जहन में एक ही सवाल सदा रहता है कि क्यों इज़राइल लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता यीशुआ करके स्वीकार नहीं किया आज तक। And we stumble on that, and the only thing we end up praying for them is for their salvation. और इसी बात पर हम ठोकर खाते हैं, और हम क्या करते हैं, इज़राइल के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। Okay, now think of this historically. अब इसको ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे। Jewish-Christian relations, how were they? Jewish and Christian relationships. Okay, यहूदी और मसीह लोगों का नाता कैसे है? Jesus is a Jew. प्रभु यीशु मसीह ये यहूदी है। Okay, he's not a Christian. हाँ, प्रभु यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन नहीं है। Jesus is a Jew. प्रभु यीशु मसीह यहूदी है। And in the future, John describes him as the Lion of Judah, even in the future in the book of Revelation. और जब यूहन्ना जब वो प्रकाशन देता है तो यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहता है, और वो एक यहूदी संस्कृति में कहता है। He is not the Lion of the Assemblies of God. हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह असेंबली ऑफ गॉड का सिंह नहीं है, or of New Life or of CNI or whatever. वो क्या CNI या न्यू लाइफ या किसी और डिनोमिनेशन का प्रभु यीशु मसीह सिंह नहीं है। He is identified with Judah, the tribe of Israel. वो यहूदा का जो वंश है उसके साथ अपनी पहचान दिखाता है। When he was a baby, a Jewish couple took care of him. जब प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चे थे तब एक यहूदी पति पत्नी ने, यहूदी माता पिता ने उसकी And देखभाल they की, risked their lives for him. और यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपनी जान तक जोखिम में डाली। Every one of his disciples were Jewish. और प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले थे वो सारे यहूदी थे, All those disciples were practicing Jews. और वो सारे जो चेले थे वो यहूदी संस्कृति और परंपरा को फॉलो करते थे। He died as a Jew, was crucified in the Roman way, and he was buried as a Jew and resurrected as a Jew. रोमी पद्धति से उसको मारा गया, पर वो मरा यहूदी तरीके से और वो दफनाया गया यहूदी तरीके से।
On the day of Pentecost, 3,000 Jews came to the Lord. और पंतिकोस के दिन में 3 परिवार यहूदी से 3,000 लोग यहूदियों में से वो मसीह के फॉलोवर्स और चेले बने। Would you feel bad if I told you that the New Testament church was 100% Jewish? अगर मैं आपको ये कहूं तो आपको बुरा लगेगा कि ये जो पहली कलीसिया थी वो सारे लोग 100% सारे यहूदी थे। Cornelius was the first Gentile. और कर्नेलियस जो था ये पहला जो यहूदी नहीं था। Initially, Jews and Gentiles worshipped together. जेंटाइल्स Is non-Yehudi, हाँ, गैर यहूदी। गैर यहूदी। हाँ। कर्नेलियस ये गैर यहूदी था और कई सारे जो थे जो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने लगे, इसमें से ज्यादातर लोग गैर यहूदी थे। Finally, in 70 AD, the temple was broken. और 70 के ईस्वी सन 70 में हम देखते हैं कि वो जो यहूदी लोगों का मंदिर था वो तोड़ा गया। Jews got scattered all over the world. और फिर यहूदी लोग जो है वो सारे पृथ्वी पर यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए। And then over the next 250 years, slowly a separation happened between Jews and Christians. और फिर उसके बाद 250 साल के बाद होले होले यहूदी लोग और मसीह लोगों के बीच में एक अलगाव तैयार हुआ, अलग हो गए। And finally, a council called Nicaea was the final breaking point. Everything broke at that stage. और उसके बाद एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में तय किया गया कि यहूदी और मसीह लोग कभी एक साथ काम नहीं करेंगे, एक साथ आएंगे नहीं, वहां से वो सेपरेट हो गया, अलगाव हो गया। And the church today has inherited that mindset, which was not the original mindset of the Bible. और आज कलीसिया ने उस प्रथाओं को अनुकरण किया लिया है जो पवित्र शास्त्र पर आधारित नहीं है। It has happened with tradition, not based on the Bible. और जो कुछ भी हुआ था ये पारंपरिक तौर पर हुआ, पर ये पवित्र शास्त्रों को लेकर उसके सीख पर लेकर हुआ नहीं है। But 1948 has started to change things. पर 1948 में सब कुछ बदलने लगा। Now Israel is back on the map after getting broken in 70 AD. और ईस्वी सन 70 में जब वो पूरी पृथ्वी पर तितर-बितर हो गए, फैल गए, उसके बाद 1948 में एक नई बात शुरू हो गई। They're back, they're reborn. कि वो उनका पुनर्जन्म हुआ और वो फिर से अपने वतन लौटने लगे। They're back in the same land that God gave to Moshe, that God gave to Yehoshua. और वही जमीन वतन का वाचा का देश जो परमेश्वर ने मूसा और यहोशुआ को दिया था, अब वही देश में वही जमीन पर सब लौटने लगे हैं। The only community that has been on that land continuously. There were no Palestinians at that time. और उस जमाने में उस वाचा वाले देश में केवल यहूदी लोग ही रहते थे, फलिस्तीनी लोग नहीं थे। Today Israel is one of the most powerful forces in the world. और आज अगर आप देखोगे तो पूरी जगत में इजराइल का सेना बल सबसे सामर्थ्यशाली You है। drive from Thane to Goa, that's Israel. अगर आप थाने से गोवा तक अगर यात्रा करते हैं तो Have you जितना driven? जमीन आप यात्रा करते हैं उतना ही देश छोटा सा Have you इजराइल driven है। from Thane to Goa? Have you driven from Thane to Goa? 4-5 times। That's Israel. और अगर हम थाने से गोवा गए हैं तो जितना समय और जितना जमीन हम क्रॉस किए उतना ही छोटा सा गोवा है। That's the length of Israel. Israel है। I'm sorry, इजराइल। That's the length of Israel. और उतनी ही लंबाई इजराइल की है। And if you drive from Bible Center to Talegaon, that's the breadth of Israel. अगर आप यहां से तलेगांव तक जाते तो जितना अंतर है उतनी ही चौड़ाई इजराइल की। दैट्स ऑल। गोवा से ठाना से गोवा लंबाई और यहां से तलेगांव चौड़ाई, इतना सा ही देश। Less than half the population of Mumbai. और जो जनसंख्या मुंबई की है उससे आधी जनसंख्या इजराइल की है। And one of the most powerful forces in the world. और उसके बाद भी पूरे विश्व में ये सबसे सामर्थ्यशाली सेना बल कहलाता है। They are at the head of inventions today. और जितने भी आविष्कार नए नए आविष्कार हुए हैं वो सारे आविष्कारों
विज्ञानों में इजराइल सबसे आगे है। Medicine, research, technology, education, entertainment, everything they are leaders. और जितना भी मेडिसिन है, दवाइयाँ है, चिकित्सा है, अनुसंधान है, जितने भी बातें हैं उसमें इजराइल देश सबसे आगे है। A desert country, एक रेगिस्तान वाला शहर, number one in agriculture throughout the world. पर वो किसान की बात में कृषि क्षेत्र में सबसे पहला है। How can this be? और ये कैसे मुमकिन हुआ? It's the hand of God. ये कैसे हो सकता है? इसके ऊपर केवल एक ही बात, Amen. परमेश्वर का हाथ है। Hallelujah. हालेलुया। The Hebrew language is today restored as the national language of Israel. और आज अगर आप देखा जाएगा तो इजराइल में उनकी जो राष्ट्रभाषा है, इसको फिर से एक बार इब्रानी भाषा को प्रस्थापित किया They गया है। speak the same language that God spoke to Moshe in. और वो आज वही भाषा को बोलते हैं जो भाषा में परमेश्वर ने मूसा से बात की। Amen. आमीन। Jews from more than 125 countries now live in Israel. और 125 देशों में जो इजराइल लोग तितर बितर हो गए थे, वापस आए अपने देश इजराइल में और आज वो वहां पर रह रहे हैं। What has happened? A restoration has happened. तो क्या इसको हम क्या कहते हैं? क्या हुआ है? रेस्टोरेशन, बहाली, पुनर्स्थापना। Because God is not a replacer, God is a restorer. परमेश्वर एक बात को दूसरे बात से लाने वाला परमेश्वर नहीं, वो प्रतिस्थापना करने वाला, पुनर्स्थापना करने And वाला। what we can learn from this is the God who restored Israel. Today, if you're struggling in your life, God can restore your life because He's the same God. हालेलुया। आज हम इससे क्या सीखते हैं? अगर परमेश्वर इस्राएल को पुनर्स्थापित कर सकता है, तो अगर आज आप आपके जीवन में संघर्ष कर रहे हो, चुनौतियों का सामना कर रहे हो, तो वही परमेश्वर जो इस्राएल का जो था है रहेगा, आज आपकी पुनर्स्थापना करेगा। Amen. आमीन। Today, lakhs of Jews all over the world know the Messiah Yeshua. और आज दुनिया में लाखों यहूदी है जो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के तौर पर जानते I can हैं। tell you one Jewish man who has taken the gospel all over the world. His name is Morris Cerullo. और मैं एक यहूदी व्यक्ति का आपको नाम बताना चाहता हूं कि जो यहूदी था, पर उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरी दुनिया भर फैलाया, और वो है मॉरिस सिरुलो। God is doing something. परमेश्वर कुछ कर रहा है। And I want you to read this verse with me now. Acts chapter 3 verses 19 to 21. और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इन वचनों को आप पढ़े। प्रेरितों के कार्य इसका 3रा अध्याय वचन 20 से 21। Mark it in your Bible because I'm going to be running fast through a lot of scripture. और आप अपने पवित्र शास्त्र में इसको रेखांकित कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्द गति में बात करने This वाला हूं। verse, Peter says, a time of refreshing is coming. और इस वचन में पेतरुस क्या कहता है कि एक नई ताजगी का समय आ रहा है। And he says that the Lord will send the Messiah back. और पेतरुस कहता है कि परमेश्वर मसीहा को फिर से एक बार भेजने वाला है, But परंतु he has to remain in heaven until the time comes for restoring everything. पर यीशु मसीह को तब तक स्वर्ग में रहना होगा जब तक परमेश्वर पृथ्वी पर सबकी, इजराइल की स्थापना वापस करता You नहीं। must have read this verse many times. इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, Look at it afresh today. पर आज इससे एक ताजा तौर तरीके से देखिए। God's giving us the timing for the return of Yeshua. परमेश्वर यहाँ पर अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए एक समय दे रहा है। And he says that he is to remain in heaven until the time comes for restoring everything. परमेश्वर कहता है कि जब तक सब कुछ फिर से मैं प्रस्थापित न करूं पृथ्वी पर, तब तक यीशुआ को स्वर्ग में ही रहना होगा। Amen. आमीन। What is this being talked about? ये किसके बारे में कह रहा है ये पर? One of the greatest restorations we see today is of Israel. और सबसे बड़ी पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन अगर आज हम देखते हैं तो इजराइल के बारे में है। And when we look at Israel, we need to say, look, God's restoring. The time is coming for the Lord to return. और जब हम इजराइल के पास देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखो, परमेश्वर इजराइल की पुनर्स्थापना कर रहा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय नजदीक आ रहा है। Amen. आमीन। The Hebrew language is restored. The Jews are restored. The
land is restored, Israel is a leader today. It's happening. इब्रानी भाषा को पुनर्स्थापित किया गया है, इजराइल राष्ट्र को पुनर्स्थापित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। In Matthew chapter 24 and Luke chapter 21, both are similar chapters. और ये मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय और लूका रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय, ये बहुत ही इसमें साम्य है, इसमें एकता दिखती है। Mark 13 as well. और मरकुस 13 अध्याय में भी। That's why the first three gospels are called synoptic, because they all tell the same story. और इसीलिए पहले तीन जो सुसमाचार है इसको सिनॉप्टिक कहा गया है, मतलब हर सुसमाचार में वही बातें, वही कहानियां, वही सीख हमको दिखती है। John is very different. परंतु यूहन्ना का रचित सुसमाचार इन तीनों से अलग है। So the synoptics, what they say in these three chapters, when people come and ask Yeshua, Jesus, when are you going to come back? What is the answer he gives them? और ये पहले जो तीन सुसमाचार के जो पुस्तक है, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, इसमें लोग प्रभु यीशु मसीह को आकर इस सवाल पूछते थे कि प्रभु यीशु मसीह फिर कब आएगा? And he tells them there are going to be wars and there are going to be famines and all sorts of trouble that will take place. और वहां पे लिखा गया है कि बहुत युद्ध होंगे, संघर्ष होंगे, अकाल होगा, ये सारी जो बातें होगी तो ये चिन्ह होगा कि मसीहा फिर से आने वाला है। And then he tells them the final sign. और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको एक आखिरी चिन्ह बताता है। Watch the fig tree. और वो कहता है कि इस अंजीर के पेड़ को आप देखो, because when it starts to blossom, you know the time has come. क्योंकि जब अंजीर का पेड़ बहरने लगता है तब समय है कि वो मसीहा आने का समय। This was symbolic language. और ये जो है चिन्हात्मक ये भाषा है। Because the fig in the Bible represents Israel. क्योंकि अंजीर का पेड़ जो है ये इजराइल लोगों का चिन्ह है, प्रतिनिधित्व करता है। We don't have time to look at that, but it's in Hosea, it's in Jeremiah, and then many places where हमें इस Israel is called a fig. हाँ, इजराइल को अंजीर का पेड़ कहा गया है। होशिया, यिर्मयाह, ये जो किताबें हैं इसमें ये लिखा गया है। Now Jesus links his return to Israel. अब प्रभु यीशु मसीह उसके दूसरे आने का आगमन का जो कनेक्शन जो है वो इजराइल के साथ लगाता है। It's connected. और ये जुड़ा हुआ है इजराइल के साथ। And remember what Peter said on the day of Pentecost. और पेतरुस भी पेंतिकोस्त के दिन में यही कहता है। He said the Lord will remain in heaven till restoration takes place. कि मसीहा तब तक स्वर्ग में रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर इजराइल की पुनर्स्थापना होती नहीं। Today you and I are blessed to see the restoration of Israel, and we know the time for return of the Lord is very near. आज आप और मैं इतने धन्य है कि हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से सुन रहे हैं कि इजराइल की पुनर्स्थापना हो रही है। इसका मतलब मसीहा जल्दी आने वाला है। And Paul says the time will come, Romans 11:26, when all Israel will be saved. और रोमियो 11:26 में पौलुस क्या कहता है कि इसी रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। Amen. Amen. Now let's look at what's happening in church life. तो देखिए कि कलीसिया के जीवन में फिर क्या हो रहा है। We've seen one brother, okay, restoration of Israel, one brother. अभी हम एक भाई को हमने देखा, इजराइल जिसकी पुनर्स्थापना हो रही है। What's happening with the church, the other brother? तो दूसरा जो भाई है, जो कलीसिया, उसमें क्या हो रहा है? In the last many years, few years, not that many, और पिछले कुछ सालों में we are seeing an expansion of evangelism. हमने सुसमाचार को बढ़ते हुए देखा है। People all over the world are receiving the Lord. और पूरी दुनिया में कई सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। We are seeing a huge outpouring of the Holy Spirit. People are receiving the blessings, the fullness of the Holy Spirit. और कई लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रहे हैं और उसके सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। If you study history, you'll see from the time in India, from the time of the Pandita Ramabai revival of Mukti Mission, India has been a changed country. और अगर आप इतिहास को देखोगे तो केडगांव में जो पंडिता रमाबाई है वो एक ऐसा केंद्र था जहां पर बेदारी आई, रिवाइवल आया और तब से महाराष्ट्र में और भारत में बातें बदलती गई। Signs and wonders have returned to the church. अद्भुत और चिन्ह चमत्कारों को कलीसिया से जोड़ा गया है। And if you're wondering what I'm saying, look at church history. For more than 15-1600 years, there was
was nothing about signs and wonders. 1500 या 1600 साल अगर आप इतिहास देखोगे तो कलीसिया में इतने चिन्ह चमत्कार अद्भुत बातें नहीं हो रही थी कभी। But it started again in the last 125 years. पर पिछले 120 साल से वापस चिन्ह चमत्कार अद्भुत बातें कलीसिया में होने लगी। Praise and worship is back in the body of Christ like it has never been before. स्तुति और आराधना परमेश्वर के मसीह की देह में कलीसिया में फिर से प्रस्थापित हो गई है। And God is restoring even his biblical festivals back to the church. और जो सारे पवित्र शास्त्र के त्योहार है उनको परमेश्वर फिर से एक बार प्रस्थापित कर So रहा in है। parallel, one brother is getting established again, Israel, and the other brother, the church, is getting strengthened again, restoration on both sides. अगर हम इसको एक साथ देखेंगे तो इज़राइल जो बड़ा भाई है परमेश्वर उसकी पुनर्स्थापना कर रहा है। और दूसरी जगह दूसरी तरीके से देखते हैं कि जो दूसरा भाई कलीसिया है पिछले 120 साल से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कलीसिया की भी पुनर्स्थापना कर रहा है। And the church, the believer, needs to be connected to Israel in a strong way, in an emotional way, in a practical way. इसीलिए आत्मिक तौर पर, शक्तिशाली तौर पर और मानसिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर कलीसिया को इज़राइल के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। Amen. आमेन। Our roots are with Israel in the past. Our roots. और भूतकाल से अगर आप देखोगे तो हमारा जो रूट है, मूल जो है, ये इज़राइल से जुड़ा हुआ We है। have a connection of roots. और हमारे मूलभूत तौर पर हम इज़राइल से जुड़े हुए हैं। In the present, we have a mandate to bless Israel. और आज के दौर पर ये हमारे लिए अनिवार्य है कि हमें इज़राइल को आशीष देना है। If you look at Romans 15:27, अगर आप रोमियो की पत्री इसका 15वां अध्याय और 27 वचन में देखोगे, Paul says that the Christian, the Gentile, the non-Jewish Christian owes a debt to the Jewish people. और ये कहता है पौलुस की जो गैर मसीह है, गैर यहूदी है, ये जो इज़राइल है उसके प्रति उनका ऋण है। You can look at any version or any language of the Bible, it says the same thing. और आप किसी भी भाषांतर को पढ़ोगे, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो यही इसमें लिखा हुआ है। And Paul says it is their duty to minister to Israel. और ये कलीसिया का कर्तव्य है कि हमें इज़राइल के प्रति सेवकाई का हृदय होना चाहिए। It is our duty. ये हमारा कर्तव्य बनता है, It's not a request. ये कोई विनती नहीं है। We have a mandate to bless Israel and stand with Israel. ये बताया गया है कि अनिवार्य है हर कलीसिया के मसीह के लिए कि हमें इज़राइल के साथ खड़ा रहना है और उनको आशीष देना We've seen है। the past, we've seen the present. और ये भूतकाल में और ये भविष्यकाल What में। about the future? और फिर ये आने वाले भविष्यकाल में क्या है? We have a common destiny with Israel at Jerusalem. और यरूशलेम में हमारा इज़राइल के साथ एक भविष्य बना हुआ है। Why? क्यों? Because Israel is waiting for the Messiah क्योंकि इज़राइल मसीहा का इंतजार कर रहा who will है come to Jerusalem, कि जो यरूशलेम में आएगा। and the church knows और कलीसिया को ये पता है that the Messiah will return to Jerusalem. कि मसीहा यरूशलेम में फिर से आने वाला है। Amen. आमीन। We have a common destiny. एक ही हमारा सबका भविष्य है। A Jewish man was once being interviewed. और एक यहूदी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया। He said, do you think Jesus is the Messiah? और उससे पूछा गया क्या आप सोचते हो कि यीशु मसीह एक मसाया है, मसीहा है? He says, I'm not sure. तो उसने कहा कि मुझे इतना यकीन नहीं। But whenever he comes, पर उसने कहा कि वो जब भी आएगा I'm going to ask him, मैं उसे पूछूंगा is this your first visit or your second visit? कि ये आपका पहले आना है या दूसरा आना है? Amen. आमीन। God's restoring something.
परमेश्वर किसी बातों की पुनर्स्थापना कर रहा And that है। is why connecting back to Israel gives us a more complete understanding of the Bible. इसीलिए इज़राइल के साथ फिर से जुड़ जाना, इसके द्वारा परमेश्वर पवित्र शास्त्र की स्पष्टता हमें दिखा रहा So है। let me ask you a question now. तो फिर मुझे आज आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। Do you really believe in your heart that God is the same yesterday, today and forever? तो क्या आप आपके हृदय में ये सच में विश्वास करते हो कि परमेश्वर कल, आज और सदा समान है? Yes? He's the same, right? वो एक ही है, He समान doesn't है, change. वो कभी बदलता नहीं। Malachi 3:6 says that. और मलाकी 3:6 ये कहता है Where do I stand on this issue? कि मैं इस बात पर कहाँ खड़ा हूँ। So if he's the same, अगर वो सही, वो एक ही है, that means he's not become modern, right? He's still old fashioned. तो इसका मतलब वो एकदम आधुनिक नहीं हुआ है, वो पहले जैसा ही है जो पवित्र शास्त्र में देखते He's हैं। still the conservative God he used to be. वो वैसे ही उसकी सोच, उसका दिमाग वैसे ही है जैसे पुराना है। And if he had expectations from Israel, don't you think he has the same from us? और अगर वही परमेश्वर इज़राइल से अपेक्षा करता है, तो आप ऐसे नहीं सोचते कि वो कलीसिया से, आपसे, मुझसे भी वही अपेक्षा करता है? Yes, no? हाँ या ना? I'm not sure. क्या आपको कुछ संदेह इसके बारे में? And that's what we need to look at further today. Where do I stand in my relation with God today? और यही आज हमको देखना है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ जब बात आती है मेरे और परमेश्वर के नाते के बारे में, संबंध के बारे में, रिश्ते के बारे में। Okay, so let's ask this question again. तो आइए ये सवाल फिर से एक बार पूछते हैं अपने आप को। Where am I? Now, you're not in Bible Center, but in our spiritual walk, where am I? मेरे बाइबल में नहीं, पर ये एक सवाल पूछिए कि मैं मेरे एक आत्मिक चाल चलन में मैं कहाँ खड़ा हूँ? Am I at a place where the only thing I want is some blessing from God or to prosper in life? क्या मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि मैं केवल परमेश्वर से समृद्धि और आशीषों की चाहत रखता I'm हूँ? just waiting the prophet of God must come and call out my name and say something about me personally. या मैं ऐसे समय में आकर खड़ा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई नबूवत करने वाला संदेष्टा प्रॉफिट आए, मेरे नाम को पुकारे, मेरे ऊपर प्रोफेसी करे? Because prosperity is a big topic within Christian circles. क्योंकि आज मसीह लोगों के बीच में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी एक बड़ा विषय बन चुकी है। And no doubt God wants us to prosper. और इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध बनो। And that's why I'm saying when you connect to Israel, you'll realize it's not an issue among Jewish people because they know how God prospers us in any case. इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप अपने आप को इज़राइल के साथ जोड़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इज़राइल को कैसे समृद्ध और प्रॉस्पर किया है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। You'll never find a Jewish beggar. आप कभी भी किसी यहूदी भिखारी को नहीं पाओगे, देखोगे नहीं। So what's the secret that they have that we don't have? तो ऐसी कौन सा रहस्य जो उनके पास है और हमारे पास नहीं? People go to businessmen, they say we want to learn Jewish principles of business. And you know what they tell them? Read your Bible. लोग जाते हैं जो बिजनेसमैन, उनके पास बोलते हैं कि हमें वो नियम पढ़ना है यहूदी लोगों के, क्योंकि वो बहुत समृद्ध हो गए। हम कहते जाओ बाइबल पढ़ो, आपको पता चलेगा। So God gave Israel the secret of prosperity and I'm sure we want that. और परमेश्वर ने इज़राइल को समृद्ध होने के कुछ रहस्य दिए हैं। It is simple. Open to the book of Leviticus on your screen, chapter 19 and verse 2. और वो रहस्य बहुत ही आसान है, अपने पवित्र शास्त्र को खोले, लेवी व्यवस्था इसका 19वां अध्याय और वचन 2। God says through Moshe, speak to the children of Israel and tell them, you shall be holy, for I the Lord your God am holy. आमीन। और परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइल लोगों को क्या कहता है? इज़राइल को सारी मंडली से यह कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। Now what is this holy? तो ये पवित्र मतलब क्या? Pastor Sham spoke about it when he was doing the dedication. और पास्टर शाम ने इस बात को जब वो समर्पण कर रहे थे तब इस बात को बताया। Okay, in Hebrew the word is kadosh. और हिब्रू में इस पवित्रता को जताने के लिए एक शब्द दिया गया है, वो शब्द है कदोश। Can you say with me? Kadosh. बोलिए कदोश। What does kadosh mean? कदोश का मतलब क्या है? We say holy, pavitra, but
But what does that mean really in practice? पर अपने मतलब सही मायने में हमारे जीवन में पवित्र शब्द मतलब क्या? It actually means set aside for usage by God. कदोश पवित्र इसका मतलब है कि अलग किए हुए चुने हुए परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए। Holy is not righteous. पवित्र मतलब धार्मिकता नहीं, No. नहीं। Holy means set aside for usage by God. पवित्र मतलब कि परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए जो प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। Pastor Sham, we know, when we were set aside in ordination, it's a setting aside. Okay, now you are set aside by the laying on of hands by the elders for usage by God. जब एक पासवान की दीक्षा होती है, ऑर्डिनेशन होता है, तो एक पास्टरों का दल होता है, वो आकर उनके ऊपर तेल मलते और कहते कि आज से आपको परमेश्वर के राज्य के लिए अलग किया गया है। That is what holy is. उसी को कहते हैं पवित्रता। You can be holy, but you can be behaving in an unrighteous manner. आप पवित्र होने के बाद भी एक अधार्मिकता के तरह से जीवन जीते हो। All right. Now let's take another example. और एक This is your उदाहरण guitar? देखते हैं। Is this your guitar? Okay. What kind of music do you play on it? ये इस गिटार पे Any आप gospel? So you've dedicated this guitar for the Lord. अब इस गिटार पे आप किस प्रकार का संगीत बजाते हो? गॉस्पल। इसका मतलब इस गिटार को आपने अलग किया हुआ है, समर्पित किया हुआ है। It means this is kept for the Lord. It's set aside for the Lord. It's a holy. इसका मतलब इस गिटार को परमेश्वर के लिए अलग रखा गया है, मतलब ये गिटार पवित्र है। It's not for common usage. इसको सर्व सामान्य तौर पर बजाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। And that's the message God gave to Israel. और यही संदेश परमेश्वर ने इजराइल लोगों को दिया। That's the message He's giving to you and me. और वही संदेश आज आपको और मुझे परमेश्वर दे Because we're रहा part है, of the same family. क्योंकि हम एक ही परिवार का हिस्सा है। We are to be holy because He is holy. हमें पवित्र बने रहना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। Now the question is, how am I to be holy, right? देख सवाल ये उठता है कि मुझे पवित्र कैसे बनना है, Because मैं I- कैसे बन सकता हूँ? I can have one standard of holiness, he'll have another standard of holiness, he'll have another standard, he'll have another standard. It never ends. अब पवित्रता का मेरा एक दर्जा होगा, इनका अलग दर्जा, उनका अलग दर्जा, और ये चलते रहेगा। So there's only one standard, and that is God's word. और एक ही दर्जा है, स्टैंडर्ड है, वो है परमेश्वर का वचन। Amen. Amen. And God tells that secret to Israel. और परमेश्वर यही एक रहस्य जो है ये इज़राइल को बता रहा And है। because we relegate the Old Testament to history, we're not able to learn doctrine from it. Sorry. Because we think that the Old Testament is only history, we're not treating it to learn doctrine. और हम ये समझते हैं कि पुराना नियम ये केवल इतिहास है, इसलिए हम उसके अंदर जो सिद्धांत दिए हैं ये हम समझ नहीं पा रहे। But look at this siddhant, look at this principle. पर ये जो नियम है, सिद्धांत है, इसके तरफ ध्यान लगाइए। God is telling Israel in Deuteronomy chapter 7 verses 11 to 15. If you read that passage, read it at home please. व्यवस्था विवरण इसका 7वां अध्याय वचन 11 से आगे जब आप उस अध्याय को पढ़ते हो, God's commanding them through Moshe. तो परमेश्वर मूसा के द्वारा आज्ञा दे रहा है इज़राइल It says, को, therefore, इसलिए you will keep the commandments. कि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। Not a request. हाँ, कोई ये विनती नहीं कर रहा है परमेश्वर। And the word used actually for keep is a Hebrew word shamar, means you will guard the commandments like a watchman. शमार ये जो हिब्रू शब्द है, इसका मतलब कि ये आज्ञा है दे रहा है परमेश्वर, And you're going to guard the commandments. और इसका मतलब कि आप उस आज्ञाओं की सुरक्षा करोगे। Okay? That's verse 11. Then he says, verse 12. He वचन says, 12 में वो क्या कहता है? because you listen to the judgments and keep the commandments. क्योंकि तुम न्याय को सुनते हो और आज्ञाओं का पालन करते हो। क्योंकि, because, क्योंकि so the Lord will remember His covenant with you. क्योंकि तुम इसके आज्ञाओं का पालन करते हो, इसलिए परमेश्वर उसकी वाचा को याद करेगा जो आपके साथ उसने बनाई है। And then God gives 8 blessings. Mark it in your Bible, read it at home. और फिर परमेश्वर कुछ आशीषों को देता है, उसको आप रेखांकित कीजिए आपके He बाइबल says, में। I will love you.
कि मैं आपसे प्यार करूंगा, I will bless you, मैं आपको आशीष दूंगा, I will increase your numbers, मैं आपको नंबर संख्या में बढ़ाऊंगा, I'll bless the fruit of your body, मैं आपके शरीर के फल को मैं मैं बढ़ाऊंगा, आपके शरीर के फल को बढ़ाऊंगा, I will bless the fruit of your ground, that means और मैं आपके your crop, जमीन के फल को बढ़ाऊंगा, your crop. आपके अनाज को बढ़ाऊंगा, Number 6, you will be blessed above others. और औरों से ऊपर ज्यादा मैं आपको आशीषित Number करूंगा। 7, there will be no barrenness among you. और सातवां उसका आशीष ये है कि बांझपन आपके अंदर नहीं And रहेगा। number 8, I will remove the sicknesses of Egypt from you. Sickness. Yeah, illnesses of Egypt. और वो कहता है कि मिस्र के सारी बीमारियां जो है वो मैं आपके अंदर से निकाल दूंगा। Isn't this prosperity? क्या इसको समृद्धि नहीं कहते क्या? This is biblical prosperity. यही बाइबल पर आधारित समृद्धि है। But परंतु there is a condition. पर वहां पे एक नियम है, And the condition is, if you obey my commandments, then I'll do all this for you. ये शर्त वो है कि अगर आप मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो ये सारी आशीष मैं आपको दूंगा। And nowhere in the Bible does it say, because Jesus did it for me, so I don't need to obey commandments. और बाइबल में कहीं पे ऐसे दिया नहीं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये किया इसलिए मुझे आज्ञाओं का पालन करना है। In fact, 1 John chapter 5 says, if you love God, you keep His commandments. पहला यूहन्ना 5वें अध्याय में लिखा है कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन You know, करोगे। in life we think like this, my girlfriend, I love you, here's an ice cream. हाँ, हमारे जीवन में हम ये बात है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, ये ले आइसक्रीम। Yeah. When God says, you love me, there's only one sign that you love me, keep my commandments. और परमेश्वर कहता है कि तुमसे प्यार करते हो तो उसका एक ही चिन्ह है कि अगर तुम प्यार करते हो तो तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। So how do we live holy lives? तो फिर हम पवित्र जीवन कैसे जिए? By learning and keeping the commandments. कि हम आज्ञाओं को सीखें और उसका पालन करें। Amen. आमीन। That brings discipline. और वो हमारे जीवन में अनुशासन लाता है, That brings direction. और वो हमारे जीवन में दिशा लाता है, And that results in prosperity. और उसका परिणाम Hallelujah. हमारे जीवन में समृद्धि आती है। And that is what God said to Israel. और यही परमेश्वर इजराइल को कह रहा है। But when we are joined in, पर जब हम उन इजराइल के साथ जुड़ जाते हैं, in the New Testament we see the same commandment. और नए नियम में भी हम इसी आज्ञा को देखते हैं, Because Peter repeats it. क्योंकि पेतरुस इसको बार वापस दोहराता है। And first Peter chapter 1 verse 15 and 16, Peter says, it is written. Where was it written? In Leviticus. और Be holy, for I am holy. और पेतरुस लिखता है, पहला पेतरुस इसका पहला अध्याय 15-16 में कि ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? तो पवित्र शास्त्र में, व्यवस्था में। So if somebody tells you, we need to discard the law, discard the commandments, what are you discarding? What do we have if we discard it? और कई लोग ये इसके ऊपर ना झगड़ते रहते, बोलते कि हमें जो पुराने नियम की जो आज्ञा है, वचन है, उसको अभी पालन करना है, उसका कुछ महत्व नहीं है। But Peter is going back to the same command. He's quoting exactly from Leviticus and says, be holy, for I am holy. पर देखिए पेतरुस के बाद पेतरुस पुराने नियम में ही जाता है और वो कहता है कि ये लिखा हुआ है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र रहो। If you're cutting out the Old Testament, it's as good as you cut off your legs. अगर आप You have nothing to stand upon. अगर आप बोलोगे कि हमें अभी पुराने नियम की जरूरत नहीं ओल्ड टेस्टामेंट की, तो इसका मतलब जैसे हम अपने एक पैर को काट देते, कहते अब इस पैर की जरूरत नहीं। The call to holiness was to Israel and the call to holiness is to us. एक बुलाहट है इजराइल के लिए कि तुम पवित्र रहो जैसे मैं हूं, और वैसी बुलाहट आज आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कलीसिया के ऊपर है। वो कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम पवित्र रहो। And if we are holy, prosperity will follow us. It और will chase us. I'm telling you, it will chase us. हालेलुया। अगर आप पवित्र बने रहोगे तो समृद्धि, आशीषें आपके पीछे आएगी नहीं, आपके पीछे दौड़ेगी। I guarantee you, not because I say, but because the Bible says that when we follow the word of God properly, there is no failure that we're going to encounter. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो
असफलता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। And I tell you, if you're struggling in some area of your life, go back and look at your life. Am I violating some commandment of God? अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं का पालन करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, कठिनाई हो रही है, तो मैं कहता हूँ फिर से वो जाइए वचनों में और परमेश्वर से कृपा मांगिए। We're children of God. God is our Father. हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमारा पिता है। If God is my Father, then I need to behave like my Father, shouldn't I? अगर परमेश्वर मेरा पिता है तो बच्चे होने के नाते मुझे पिता के समान व्यवहार करना है। Right, Pastor Solomon? सोलोमन, सही है गलत? Indeed, right. सही है। So I need to be thinking like my Father in heaven. तो मैं जो मेरा स्वर्गीय पिता है उसके बारे में मुझे उसके तरीके से I need to सोचना है। behave like my Father behaves. और जैसे मेरा स्वर्गीय पिता व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, वैसे मुझे करना है। I need to think like him. I need to have emotions like him. जैसे वो सोचता है, जैसे उसकी भावना है, वैसे मेरी भी होनी चाहिए। Amen. सोच, आमेन। Because then I can bring transformation to this world. तब उसके बाद ही इस दुनिया में मैं एक बदलाव और परिवर्तन ला सकता हूं। Bible says we are made in His image. पवित्र शास्त्र कहती है कि हमें परमेश्वर के प्रतिबिंब और प्रतिरूप का बनाया गया है। Amen. आमीन। And whether you're Tamilian like my dear friend Brother Reynold, फिर शायद आप मेरे भाई ब्रदर रेनॉल्ड आप तमिल भी क्यों ना हो, or you're Maharashtrian like my dear friend Pastor Sham, और मेरा डियर फ्रेंड मेरे दोस्त प्रिय मित्र पास्टर श्याम की जैसे आप महाराष्ट्र it doesn't matter. We're made in the image of God. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हम सब परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए हुए हैं। Amen. आमीन। But let me tell you what God showed Israel that we sometimes don't get. अब मुझे आपको बताने दीजिए कि परमेश्वर ने इज़राइल को वो क्या बताया दिखाया जो हमें कभी-कभी समझ में नहीं आता। When we look at the original language, जब हम अपनी मूल भाषा में इब्रानी में देखते image, हैं, because we wonder what image is God fat, is God thin, is he tall, is he short, is he muscular, is he lean, how is he, what image? बाइबल में लिखा है कि मेरे प्रतिरूप मतलब क्या, मेरे समान मतलब क्या, वो पतला है, दुबला है, सामर्थ्यशाली, क्या है ये? Like that song people used to sing ना, ऊंचा बनाया नाटा बनाया, you know. वो गीत हम गाते हैं ना, ऊंचा बनाया नाटा बनाया, उसमें क्या है Does परमेश्वर? God have blonde hair? Does he have black hair? Does he have green eyes? Does he have white eyes? I don't know. उसके क्या हरे नीले कैसे आंखें हैं, उसके बाल कैसे, वो है कैसे? प्रतिरूप मतलब क्या? Well, the Hebrew word for image is a word called selem. Say it with me, please. Selem. अब बोलो सेलेम। अब सेलेम ये इब्रानी शब्द है जो प्रतिरूप के लिए Now, लिखा गया है। why so much? Why Hebrew everywhere? We are Indians. Tell me in Hindi. Tell me in Tamil. हम तो भारतीय हैं, ये क्यों हिब्रू का रट लगाए हुए हैं? Because that's the language of the Bible. सॉरी, That's the language of the Bible. पर मैं आपको बताता हूँ कि इब्रानी भाषा यही बाइबल की भाषा है। Amen. आमीन। And we better learn it now, or we'll have to learn it in eternity. हाँ, तो अच्छा होगा ये आप इसको अभी से पढ़े, नहीं तो अनंत काल के जीवन में हमको पढ़ना पड़ेगा। I keep saying this to my Malayali friends. Malayalam is not the language of heaven. Hebrew is. और मैं मेरे मलयालम दोस्तों को बार बार ये कहता हूँ कि भाई मलयालम भाषा स्वर्गीय भाषा नहीं है, स्वर्गीय भाषा इब्रानी भाषा है। Okay. So, what does Hebrew say? तो Selem. तो इब्रानी में सेलेम ये शब्द प्रतिरूप के लिए बनाया गया है। My son just cleared his 10th. Thank you for everyone, and Pastor Sham was praying for him. और मेरा जो बेटा जॉन डे उसने अभी 10वीं कक्षा पास की है। He got his mark sheet and he went to the shop and made a color photocopy. और उसको अपने जो मार्क शीट है वो मिली और उसने जेरोक्स के दुकान में जाकर उस मार्क शीट को एक कलर जेरोक्स बनाया। Now when you look at the color Xerox and the original, at least to an untrained eye like mine, I can't make out the difference. और अगर आप उस ओरिजिनल जो मूल प्रत है उसको देखोगे मार्कशीट के और जो कलर जेरोक्स को देखोगे तो मेरे जैसा जो ज्यादा जान पहचान नहीं रखता मेरे लिए तो सब सेम लग रहा है। The word selem means photocopy. तो सेलेम शब्द जो इब्रानी का इसका मतलब है
फोटो कॉपी जैसे के वैसे दिखने वाला। And the Bible says He's made us photocopies of what He is. हालेलुया। और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है जैसे हम परमेश्वर की फोटो कॉपी हैं। Amen. आमीन। Do you understand why God gave laws? अभी आपको पता चला कि प्रभु ने नियम क्यों दिए हैं? Because He said, if you're my photocopy, you have to be like me. You can't be like the world. तो वो कहता अगर आप मेरी फोटो कॉपी हो, प्रतिरूप हो, तो आपको मेरे जैसा होना है, आप दुनिया जैसे नहीं बन सकते। What many in the church are telling us today? No, we don't need these laws. It's okay. We can live without it. It's only for Israel. No. It's one family, one law for the family. कलीसिया में आज लोग क्या बोल रहे पता है? नहीं, हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, ये इजराइल लोगों के लिए था, अभी हम तो नए नियम के लोग हैं। But did God make only Israel as His Selim, or did He make all of us Selim? तो क्या परमेश्वर ने केवल इजराइल को ही प्रतिरूप सेलेम फोटोकॉपी बनाया है, या फिर आज आपको और मुझे कलीसिया को भी फोटोकॉपी बनाया है? All who come through Christ Jesus are all in the image of God now. जो सारे प्रभु यीशु के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो सारे परमेश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। Anyone works in a company here? कोई है यहाँ पे जो कंपनी में काम करता है? There are policies that govern a company, and you have to abide by the policies. उस कंपनी को चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज होती है, नियम होते हैं, और आपको उन नियमों का पालन करना पड़ता है, होता है। If you're part of the family of God, there are policies that we have to operate. अगर आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो, तो परमेश्वर ने कुछ पॉलिसीज, कुछ नियम दिए हुए हैं। God gave that to Israel. और वही पॉलिसीज, वही नियम परमेश्वर ने इस्राएल को दिए। Now let's listen further. और आगे पढ़ी देखिए In Isaiah 42 and verse 6. और यशायाह इसका 42वां अध्याय 6वें वचन में tells Israel, और परमेश्वर इस्राएल को कहता है, I have called you in righteousness, कि मैंने तुम्हें धार्मिकता में बुलाया है, and you are to be a light to the Gentiles. और जो गैर यहूदी है उनके लिए आपको प्रकाश ज्योति बनना है। Who is God saying it? तो ये किसके लिए प्रभु कह To रहे हैं? Israel in Isaiah 42. यशायाह The audience, Isaiah's audience was Israel. और यशायाह 42:6 में लिखा जो है, ये किसके लिए लिखा है? यहूदी लोगों के लिए। और ये पढ़ने वाले कौन हैं? यहूदी लोग हैं। Okay, now let's fast forward into the Gospel of Matthew. तो आइए हम आगे बढ़ते तुरंत और आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। Now the Lord Jesus, Yeshua, is talking to his disciples. अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यीशुआ अपने चेलों के साथ बात कर रहा है। Chapter 5 verse 14. मत्ती 5 और 14 में क्या And what कहता does he है? say? क्या कहता है? You are a light to the world. कि तुम इस दुनिया की ज्योति हो, You're the light of the world. तुम इस जगत की ज्योति हो। Imagine that he's saying it to you and me today. तो आज प्रभु यीशु मसीह यही आपको और मुझे कह रहा ही है। He said it to Israel, उसने इजराइल को कहा, and he's saying it to you and me. वो आज आपको और मुझे कह रहा है। One family. एक परिवार। Okay, so what now? I'm the light of the world. So I take a nice title and I say, this is my title. हाँ, तो क्या कहा है कि तुम इस जगत की ज्योति प्रकाश हो, तो ये शीर्षक मैं लेता हूँ कि मैं प्रकाश हूँ। we love titles in Christianity. हाँ, I'm this, I'm that, you know. मसीहत में हमें नामकरण अच्छा लगता है, टाइटल्स। I'm light of the world. हाँ, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। But you know what James explains to us? याकूब क्या कहता है पता है क्या? James explains to us. याकूब इसका स्पष्टीकरण देता है। Very practical book. और बहुत व्यवहारिक है ये। James says all this theory doesn't matter. वो कहता है कि ये सारी थ्योरी है, बड़ी बड़ी बातें, कुछ फर्क नहीं If somebody is sick and you'll go and tell him, praise the Lord, what's the point? Give him a blanket. क्या कहता है याकूब? क्या कहता है? कोई बीमार है तो आप जाकर बोलोगे प्रेज द लॉर्ड, क्या फर्क पड़ने वाला है? पर आप जाके उसको ढक दो, ब्लैंकेट दो। So being a light into the world is not a title. तो दुनिया की ज्योति होना मतलब ये कोई शीर्षक नहीं है, but we are expected to do something. तो इसका मतलब कि हमें कुछ करना है, परमेश्वर अपेक्षा करता है। Israel was expected to do that, and to a large extent Israel failed. और इज़राइल से परमेश्वर ने कुछ करने की अपेक्षा रखी थी, पर इज़राइल उसमें असफल रहा बहुत बार। But they're back. And they will do their job. They're back and they will do their job. पर वो अभी फिर से आ रहे हैं और वो उनका काम करेंगे। The question is, are we the light to the world or not? अब सवाल ये है हमारी तरफ, क्या हम दुनिया की ज्योति है या नहीं?
You know, I think I'm the light, but again, it's I have a standard, you have a standard, he has a standard. Come on, that will never change. मैं सोचता हूँ कि मैं दुनिया की ज्योति हूँ, पर फिर से मेरा अलग दर्जा, आपका दर्जा अलग, आपका दर्जा अलग, ये कोई बदलने वाला नहीं। One standard, whether I'm a light into the world or not, and that's the Bible. और एक ही दर्जा स्टैंडर्ड, वो मतलब है कि क्या मैं परमेश्वर की ज्योति हूँ, और वो दर्जा क्या है? प्रभु का वचन सबके लिए समान। And the book of Proverbs tells us this. और नीति वचन की किताब हमें ये कहती है, Chapter 6 verse 23, what is this light that we are to take to the world? नीति वचन इसका 6वां अध्याय 23वां वचन कहता है, ये लाइट, ये प्रकाश, ये ज्योति क्या है? The commandment of God is a lamp. The lamp holds the light. Remember that. और ये lamp holds the light. ये वचन कहता है कि आज्ञा जो है ये दीपक है, और दीपक क्या है? And the- दीपक के अंदर ज्योति होती है, And the light is the law of God. और ये ज्योति क्या है? ये ज्योति परमेश्वर के विधि नियम है। When we live out the law of God, we're taking the light into the world. जब हम परमेश्वर के विधि नियम के अनुसार जीते नहीं, तो इसका मतलब हमारी जिंदगी से परमेश्वर की ज्योति है उसको हम अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। Yes. And you and I are called to bring God's light into every situation in the world. हालेलुया। और आपको मुझे इसलिए बुलाया गया है परमेश्वर ने, ताकि हम परमेश्वर की ज्योति Amen. बनकर इस दुनिया में प्रकाश फैलाए। We are children of God, think like God. तो अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर जैसा सोचिए। If someone's hurt on the road, if somebody is hurt on the road, अगर किसी चोट लग गया, चोट लगी किसी को रास्ते पे, what would God do? Would God just drive by and say, बेचारा? अगर किसी को रास्ते पे चोट लगी, हम देखते, अगर हमारी जगह परमेश्वर होता तो परमेश्वर क्या कहता? सिर्फ देखता और कहता ऐसा करके चला जाता? No. What would God do? प्रभु क्या करेगा? When we are writing our exams, जब हम हमारे एग्जाम्स को And- परीक्षाओं को लिखते हैं, and we've forgotten what the answer is, and the invigilator's gone outside the class, और जब हम परीक्षा हॉल में एग्जाम लिख रहे हैं, हम कुछ उत्तर को भूल जाते हैं, और जो वहाँ पे शिक्षक एग्जामिनर होता है वो हॉल के बाहर जब जाता है, तब हम क्या करते हैं? what बोलो, would God do? क्या करते हैं? बोलो। I mean, we can come and speak in tongues in church, right? I'm But from permission- AG. We speak a lot of tongues. या पर परमेश्वर उस हॉल में होगा तो वो क्या करेगा? Yeah. It's you know, in English it says when the rubber hits the road, then you know the quality of that rubber. एक इंग्लिश में ऐसे कहा गया है कि रबर जब रास्ते को छूता है या रास्ते को छूता है, तब पता चलता है कि रबर की क्वालिटी, दर्जा कैसे है। And in a real life situation, are we living out the word of God? तो क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हम परमेश्वर के विधि नियम के बाहर जिंदगी जी रहे हैं? That's when we bring heaven onto earth. हाँ, अगर जब हम वचन के अनुसार जिएंगे, तब हम स्वर्ग को इस पृथ्वी पर लेकर आएंगे। Amen. आमीन। It's not by shouting slogans. हाँ, केवल स्लोगन से, पुकारने से नहीं होगा ये। It's not, you know, नारे लगाओ, झंडा, you know, it's good songs, good worship. But, नारे you know, लगाओ, sometimes ये- the only thing we do is झंडा. ये जो गीत है झंडे के बारे में, जोर जोर से गाते, अच्छे गीत है, पर क्या हम समझ रहे हैं? Christian life is not just about a creed. I believe this, I believe that. Very good. James says even the devil believes in God. हाँ, James says that, by the way. Even the devil believes in God. देखिए, जेम्स जो है, याकूब कहता है कि शैतान भी तो विश्वास करता है। तो मसीह जीवन ये नहीं कि जो प्रेरितों का जो विश्वास था, कबूली थी, वो देना कि मैं मेरे परमेश्वर पिता पुत्र पे विश्वास करता हूँ, ये नहीं है मसीह जीवन। See, I'll tell you the problem we have as Christians. When we meet a believer, hey, what's his doctrine? Is he Pentecostal? Is he Baptist? Is he Methodist? Is he Presbyterian? But there's no end, right? Thousands of denominations. हम विश्वासियों के साथ, आज के कलीसिया के लोगों के साथ समस्या क्या है पता है? जब हम किसी और विश्वासी को मिलते हैं, हमारे जहन में आता है क्या ये पेंटिकॉस्टल है, ये बैप्टिस्ट है, ये एजी का है, ये सीएनआई का है, ये कौन से पंथ का है? So we want to know what their belief is. तो हम चाहते हैं कि उनका विश्वास क्या है ये समझ ले। But the Bible teaches us, परंतु it's not what your belief that matters. It's what your walk, it's your practice. परंतु पवित्र really शास्त्र matters. हमें सिखाता है कि आप कौन से क्रीड पर या विश्वास करते हो, आप आपकी जिंदगी कैसे जीते हो। Amen. Amen. Israel was to bring God's presence on earth, and the church has the same mandate to bring God's presence on earth. इजराइल का काम क्या था कि
परमेश्वर के सामर्थ को पृथ्वी पर लाना। और आज मसीह लोगों का कार्य क्या है कि परमेश्वर के सामर्थ को कलीसियाओं में लाना। Amen. आमीन। That's our mandate. ये अनिवार्य, ये करना है। That's what we're supposed to do. और यही करने के लिए And we प्रभु can ने चुना only है। do that when we learn His ways. और हम ये कब कर सकते हैं? जब हम उसके मार्गों को समझे। You know, we keep hearing this popular thing that people say, we are the Joshua generation. और एक बात है जो हम बार बार सुनते हैं, लोग कहते हैं हम यहोशुआ जनरेशन है, You हम heard that? यहोशुआ पीढ़ी है। You've heard that? सुना है यहोशुआ पीढ़ी के बारे में? Why do we say that? Because we are going into the promised land. क्योंकि हम वचन दत्त देश में, वाचा के देश में जा रहे हैं। We've never been to Israel, but we're going to the promised land. हम कभी इज़राइल गए नहीं, फिर भी हम बोलते हैं कि हम वाचा के देश में जाने वाले हैं। Okay, spiritually, fine, no problem. I'm not making fun of anyone. अब इसका मतलब हम आध्यात्मिक तौर पर लेते हैं, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। Okay, but think about what was the mandate to Joshua. पर सोचिए कि यहोशुआ को ऐसी कौन सी बातें करने के लिए कही थी। And that's why I keep saying we need to connect back to Israel. So इसलिए that we मैं कह really रहा हूं- get the depth of the Bible. इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें फिर से यरूशलेम के साथ, इज़राइल लोग के साथ जुड़ना है। मतलब हमें फिर से पवित्र शास्त्र के नियम और सच्चाई की तरफ मुड़ना है। What did God tell Joshua? परमेश्वर ने यहोशुआ से क्या बात As I was with Moshe, so I will be with you. हाँ, Right? जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ रहूंगा। Am I right? मैं सही कह रहा So हूँ। we take that promise of God. तो वो वचन हम लेते हैं, But what did he say next? पर परमेश्वर उसके बाद क्या कहता है? Let's not यहोशुआ? take verses, just cut out one verse and keep it. हाँ, अपने हिसाब से जैसे हमें लगता है वैसे वचन को मत चुनो। Take a scissor, cut it out. Ah, this is mine. हाँ, जो मेरे लिए अच्छा है उसको कट करो, ले लो। हाँ, Look at the whole context. वो पूरा संदर्भ क्या है देखो। So God tells Joshua, और परमेश्वर यहोशुआ से कहता है, be very strong and courageous, Joshua, वो क्या कहता है कि हियाव बांध, मजबूत रहे, दृढ़ रहे, that you may observe to do everything in the law which Moses my servant commanded you. ताकि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी Don't करना। even turn to the left or to the right. और तू ना तेरे दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना। We want to be Joshua generation? हाँ, क्या तुमको यहोशुआ पीढ़ी बनना है? Connect back with the laws of Moses. तो जो मूसा के नियम दिए हैं परमेश्वर ने उसके ऊपर You मुड़ो। see what I'm trying to say? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना Don't take चाहता a हूँ? verse out of context. हाँ, Look at the whole picture. संदर्भ के बाहर निकलकर वचन को मत चुनो, पर वो पूरा संदर्भ पढ़ो कि प्रभु क्या चाहता है। I am not saying that we do animal sacrifices and all that. Okay, we don't. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानवरों का बलि अर्पण No. करो, ये वो नहीं करो बोलता हूँ मैं। Of course not. नहीं करना है हमें वो। But the law of God still stands. पर परमेश्वर की जो विधि नियम है ये निरंतर बने And रहेंगे। it's meant for our good. और ये सारे विधि नियम हमारे अच्छे के लिए बनाए And गए that's हैं। what God gave Israel. That's what God's giving you and me. और इसीलिए परमेश्वर ने ये विधि नियम इस्राएल को दिए और आज हमें भी So if we दिए। want to be a Joshua generation, तो अगर हमें यहोशुआ की पीढ़ी बनना है we need to remember तो हमें याद रखना we होगा need to be connected with the laws of God. कि हमें परमेश्वर के नियमों के साथ जुड़ना होगा। And what is God wanting us to do? तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें? Look at Him उसके पास देखें and change the earth. और इस पृथ्वी को बदले। You know, if you ask a believer today, what's your goal? अगर आप किसी विश्वासी को पूछे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? My goal is to go to heaven. हाँ, मेरा उद्देश्य है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। Okay, good goal. Very good goal. अच्छा उद्देश्य है, Very good target. अच्छा लक्ष्य है। Now go and interview God. Go and interview God. Go ask God, what is your goal? तो जाओ और परमेश्वर का इंटरव्यू लो, पूछो परमेश्वर से, परमेश्वर तेरा उद्देश्य क्या है? God will say, my goal is to send my son back on earth. तो परमेश्वर कहेगा मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे पुत्रों को फिर से मैं पृथ्वी पर भेजूं। Amen. आमीन। Do you believe Jesus is coming back? आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है? Yes. So then why do we want to run to heaven? He's coming here and we're going there. तो फिर क्यों आपको स्वर्ग में जाने की जल्दी है? वो आने वाला हमको लेकर जाने के लिए। Amen. Do you get me?
समझ में आ रही बात? God has an earth focus. परमेश्वर का जो लक्ष्य है, ध्यान है, वो पूरा पृथ्वी पर लगा God हुआ है। wants to transform the earth. परमेश्वर को इस पृथ्वी को बदलना है। God wants to bring His values, His culture onto the earth. परमेश्वर को उसकी संस्कृति, उसके मूल्यों को इस पृथ्वी पर प्रस्थापित करना है। God wants to remove the works of darkness from the world. और परमेश्वर को इस दुनिया से सारे अंधकार में कार्य को निकाल देना So है। why are we wanting to run away? तो फिर हम क्यों भाग रहे We need हैं? to say, Lord, I want to wait here. You come back and we'll do it together. हमें ये कहना होगा कि प्रभु, हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, हम तेरा इंतजार करेंगे, जब तू आएगा हम मिलकर जाएंगे। Amen. आमीन। We'll transform the world together हम मिलकर इस दुनिया को परिवर्तित करेंगे and we'll make it all one. Heaven and earth one. Thy हम- kingdom come, thy will be done on earth. तेरा राज्य आए जैसे स्वर्ग में है। हालेलुया। हम स्वर्ग को, पृथ्वी को एक बना देंगे। Amen. आमीन। And Jacob's ladder will be there, where the angels of God will come up and down between heaven and earth. It will be one realm. और याकूब की सीढ़ी हम देखेंगे जो कनेक्ट करके जोड़ देती है स्वर्ग और पृथ्वी को, जहां पर हम आना जाना देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. That's the plan of God. ये परमेश्वर की योजना When we है। talk about last days, we shouldn't be just thinking of how we can run away. जब हम अंतिम दिनों की बात करते हैं तो हम ये नहीं सोचना है कि कब हमारा छुटकारा इससे हो और हम यहाँ से भाग जाए। We need to be talking about how we can work with God to remove all works of darkness. तो हमें ये सोचना है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर जो अंधकार में बात है उसको निकाल If देंगे। God only wanted us to go to heaven, we would have got saved and died and gone. अगर परमेश्वर यही चाहता था कि हम स्वर्ग में जाए तो जिस दिन हमारा उद्धार होता उसी दिन प्रभु हमको मार देता और स्वर्ग में No, लेता। I have nothing more to achieve. Go to heaven. हाँ, मेरा उद्धार पाया, अब पृथ्वी पर कुछ करने वाली बात नहीं, मरो और जाओ स्वर्ग Play में। the harp with David over there. हाँ, जाकर दाऊद के साथ वो सारंगी नारंगी क्या है वो बजाओ। But He's kept us on earth हाँ, पर सुनो, परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर रखा है because He wants to transform the world through us. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी का काया पालट बदल हमारे द्वारा ही हो। That was the mandate to Israel. That's the mandate to you and me. और यही इज़राइल के लिए अनिवार्य था और यही आज कलीसिया के लिए अनिवार्य है। So we keep our eyes on heaven, तो इसलिए हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगाए रखो, but we focus on earth. पर हमारा ध्यान, उद्देश्य, लक्ष्य पृथ्वी पर लगाए And we रखो। say, Father, और हम फिर कहेंगे, पिता, Thy kingdom come on earth as it is in heaven. तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है। Amen. आमीन। You see what happens when we connect with Israel? It all makes sense because the Bible is one. अब देखते हो जब हम इज़राइल के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, एक सारी बातें समझने लगते हैं हम, क्योंकि You सब see कुछ बाइबल से जुड़ा the हुआ है। continuity of God देखो लगातार एक बात यहाँ पर बन रही है परमेश्वर के who साथ। doesn't change. वो परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं। And that's why Hebrews 13:8 says, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. The Father is the same, the Son is the same. इसलिए इब्रानियों इसका 13वां 18वां में कहा क्या है कि वो कल आज और सदा समान है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सदा समान है। Amen. आमीन। Amen. Come on. Can we just stand to our feet for a आइए few हम minutes? कुछ क्षणों के लिए अपने And खड़े हो जाएं। let's just focus and ask ourselves this question: where do I stand in my walk with God? और आइए सवाल अपने आप को पूछे कि मैं मेरे परमेश्वर के साथ जब इस जिंदगी को जी रहा हूँ, मैं किस मकाम पे खड़ा हूँ। If I'm falling short somewhere, no problem. God will enable us to make it up. कहीं His strength. हमारे जिंदगी में कुछ खामियां हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है, पर कोई बात नहीं, प्रभु हमें मजबूती देगा। He gives us the grace. वो हमें कृपा देता है। It doesn't mean we don't try. We must try. इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम कोशिश करते रहेंगे। But when we fall short, He gives the grace. पर जब किसी बात में हम कम पड़ जाते हैं तब प्रभु अनुग्रह देता You है। and I are called to be a light. देखो हमें बुलाया गया है कि हम ज्योति बने। You and I are called to take His word out to the world. देखो हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर का वचन दुनिया तक पहुंचाएं। You and I are given the same mandate that Israel was. वही बात जो इज़राइल को दी गई है, वही बातों को, आज्ञाओं को प्रभु ने हमें दिया है और वो अनिवार्य है। Shalom and thank you for watching this video. We sure hope that you were blessed
by this teaching. We would love to hear from you, and we invite you to write to us on our email ID that is mentioned here on your screen. You can even put comments on the video. There are many videos that we have made over the last few years which are on our channel CFI India. We invite you to subscribe to our channel and to watch these videos. Some of them are over here on this link, this link, this link, and this link. These are just samples, but there are many more that you may want to watch. Thank you for watching. We'd love for you to pray for us and to be in touch with us. And you can correspond with us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and God bless you.